First year people, let's talk. Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Krina Latigra and let's begin. If you're somebody who has just entered your first year MBBS or are about to enter your first year MBBS, this video is for you. I'll walk you through everything, the books, the subjects, the tips for each and every subject, the practicals, the notes, everything. By the end, you'll have the roadmap to ace your first year that helped me ace mine too. So just hit the subscribe button and let's dive in. Okay, so the first question that comes to your mind is कि कौन से subjects से कौन सी books पढ़नी है. So there are 3 subjects: anatomy, physiology and biochemistry. Now आपको कौन सी books पढ़नी है उसमें से? Let's say for anatomy. Anatomy के लिए वैसे तो बहुत सारी books है, जैसे Grey's Anatomy है, standard books है जो हम कहते हैं. But I think at our level, at UG level, most of the people are actually reading BD Chaurasia. And for me, I personally used Vishram Singh. I don't know, I wanted to go to the other way, but it turned out fine. So you can use either of them. Second is I think physiology. For physiology, there is Guyton, AK Jain, Sambulingam. I think most of the people are using AK Jain, but मैंने थोड़े time use की थी, but then I switched to Sambulingam because if you really want to know how to write in your paper, if you really want something that helps you fetch marks, the flow charts, the figures, everything, the cycles, whatever you want to write, I think Sambulingam will guide you just fine. What you can do is कि आप concepts AK Jain में से clear कर सकते हो, लेकिन जो writing pattern आपको जाननी है वो आप Sambulingam से सीख सकते हो. फिर third is biochemistry. For biochemistry, I think there are again many great books out there, जैसे Lippincott है, Harper है, Vasudevan है, Satyanarayan है. But again, I would tell you that the Lippincott and the Harper books are actually at PG level, I can say. They are like standard books. Vasudevan will do just fine for whole of your first year. मैंने खुद Vasudevan पढ़ी थी and it was very nice. Biochemistry was actually my favorite subject in first year. So I know that's weird, but and आप क्या कर सकते हो कि बायोकेमिस्ट्री का जो कंप्लीट पैकेज है, लाइक इफ यू रीड वासुदेवन यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दैट, सो दैट विल कवर यू. Okay, now a bonus tip for anatomy. Anatomy में क्या होता है, बहुत सारी imagination लगती है. Even after practicing so much on cadaver, we actually don't understand कि ये body में actually कहाँ पे होगा, how would it look like in 3D. So आप क्या कर सकते हो, या तो आप Netus Atlas buy कर सकते हो and it has amazing figures and tags and everything that can actually help you explain कि सब कहाँ है. और if you don't want to spend extra, you can just go on the YouTube, pop up a video and just watch anything you don't actually understand. Like what I did, एक बार हमारी practicals थी and we had to explain spine and everything, but we were not actually taught that because of COVID or something. So we watched YouTube video and we did just fine. I think आप ऐसा पूरे anatomy में कर सकते हो. आपको जो भी समझ नहीं आए, you can just watch a video and you can just go ahead. Okay, so now I want to give you some study strategies and advice and exam tips and everything. But before starting that, I want to tell you that be a nerd. Don't be afraid to be that kind of nerd जो फर्स्ट बेंच पे बैठता है, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछता है. नॉट अननेसेसरी क्वेश्चंस, बट ऑफ कोर्स दोज आर नेसेसरी. ओके, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछो. इफ़ यू आर शाई लाइक मी हु इज़ अफ्रेड टू आस्क प्रोफेसर्स, यू कैन जस्ट टॉक टू योर सीनियर्स, you can talk to your colleague, your best friend, your classmate, your benchmate, anybody, your class topper, anybody. Don't be afraid to ask questions. If you're not understanding something, if you don't know how to do something, if you don't know how to read anatomy, for let's say in my first year मुझे नहीं पता था anatomy exactly कैसे पढ़ना है, ठीक है. लाइक मैं पढ़ती थी बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. तो as my friend, like I asked my colleague actually, and he actually taught me कि यार वो कैसे पढ़ता है actually, and that helped me. So it was that easy. Don't be afraid to ask questions. Other than that, I think make a friend. Like 1 or 2 friend is fine because like for studying purpose, क्योंकि group study जैसा कुछ actually होता नहीं है. There is very rare case that कोई actually पढ़ता है group study में, because you always end up gossiping and talking, and that's fun actually. So make a friend 1 or 2, that is fine for your study purpose. Make a good routine because a routine or schedule will help you save your time. आप कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट करो आपको भी पता नहीं चलेगा. So if you really want to get your things done, make a routine, make a schedule so disciplined that not even you can break it. Okay, now let's talk about the exam strategies. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की. एनाटॉमी के लिए आप एक बुक सिलेक्ट करो. लेट्स से यू हैव BD Chaurasia, विश्राम सिंह, पिक एनी बुक. इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, आई थिंक फर्स्ट 1 or 2 months आर इनफ टू एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आप बुक्स को चेंज मत करना, क्योंकि विजुअल्स और विजुअल मेमोरी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन बुक टू अनदर, यू माइट एंड अप रिमेंबरिंग नथिंग. सो this is one thing. And also anatomy is a very visual thing. You have to imagine a lot of things, you have to understand a lot of things, and you have to draw diagrams and whole lot of diagrams. So what you need to do is
अब जब भी एनाटॉमी पढ़ने बैठो ना तो एक बुक अपने साथ रखना एंड यू जस्ट कीप ड्राइंग डायग्राम्स वॉट एवर यू फाइंड, लाइक अगर आपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखा, अगर आपने यू नो द सेम रेटिनाकुलम्स और लिगामेंट्स, वॉट एवर यू see and you think like you can make a diagram out of it or there is a diagram out of it, so you can just draw it and practice it side by side, क्योंकि कोई अलग से इतना diagram practice करने बैठता नहीं है, so just do it side by side. ठीक है ना. फॉर फिजियोलॉजी आई टेल यू, फिजियोलॉजी में आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स वांट फ्लो चार्ट्स एंड साइकिल्स और यू नो वॉट एवर यू राइट, लाइक बट डोंट राइट इट एज पैराग्राफ्स और समथिंग, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता. द प्रोफेसर्स आर गोइंग टू चेक योर पेपर्स, एक्चुअली हैव 2 to 3 minutes पर पेपर आई थिंक, एज मच एज आई नो. तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड आपका सब कुछ पढ़े, तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू चेक योर पेपर एंड दैट विल फेच यू मोर मार्क्स. ठीक है, कुछ भी रेलिवेंट लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे. एंड द प्रो टिप फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, डू नॉट लीव एनीथिंग अनअटेंडेड. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसके बारे में स्लाइटली भी कुछ भी आइडिया है, यू हैव टू अटेंड दैट क्वेश्चन, यू कैन नॉट जस्ट लीव दैट, बिकॉज मार्क्स मिलेंगे कैसे अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा. ठीक है, आई विल शो यू इमेज और अ वीडियो ऑफ समथिंग जो फिजियोलॉजी में जैसे मैंने लिखा था वैसे आई विल शो यू. ओके देखो, दिस इज एग्जाम्पल फॉर फिजियोलॉजी. आई जस्ट शो यू विथ एन आंसर. ये जो होम्योस्टेसिस इट इज नॉट एक्चुअली ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये जस्ट मैंने बनाया टू जस्ट एक्सप्लेन यू. ठीक है, लेट्स से कि होम्योस्टेसिस पे 10 मार्क का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आता है. हमारे टाइम में ऐसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते थे एंड एज फार एज आई नो अभी भी ऐसा ही आता है. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन है, सपोज एक मार्क या 2 मार्क के डेफिनेशन पूछते हैं, कंपोनेंट्स का 2 मार्क हो गया, मैकेनिज्म का 4 हो गया एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का 3 हो गया. दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. शायद 2 क्वेश्चन फ्यूज करके भी पूछे. तो सी, अगर तुमने डेफिनेशन पूछा है तो तुमको सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना है, जितना है उतना. और उसके बाद कंपोनेंट्स पूछा है, लेट्स से तुमने ये आंसर पढ़ा है, होम्योस्टेसिस का टॉपिक तुमने पढ़ा है, उसमें लेट्स से कंपोनेंट और डेफिनेशन के बीच में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तुमको वो नहीं लिखनी है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है. एंड 3 कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि इसके 3 कंपोनेंट है, तो टेक्स्ट बुक में जैसे भी लिखा हो तुमको ऐसे ही फ्रेम करके लिखना है. जितना तुम क्लासिफिकेशन के फॉर्म में या फिर जितना भी तुम ऐसे ईजिली फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे तो पढ़ने वाले को उतना ईजी होगा एंड दे कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू द आंसर एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाएंगे वो, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है. ठीक है, तो लेट्स से तुमने ये 3 कंपोनेंट लिखे. अभी क्या करते हैं, सेंसर्स लिखते फिर पूरा पैराग्राफ लिखते, उतना करने की जरूरत नहीं है. लेट्स से तुमने सेंसर्स या डिटेक्टर्स या रिसेप्टर्स उसके नाम लिखे, उसके नीचे तुम 2 या 3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो, वहाँ पे वो बात खत्म हो गई. तो तुमको पूरा भरना भी नहीं पड़ेगा, इतना टाइम भी नहीं जाएगा और इट विल बी ईजियर फॉर एग्जामिनर ऑल्सो. और फिर एक तुमने डायग्राम जैसा ड्रॉ कर दिया या फिर साइकिल जैसा ड्रॉ कर दिया, दैट विल बी ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड एज वेल. उसको पता चल जाएगा कि इसने पढ़ा है. नाउ लेट्स से तुमको यहाँ पे उसका मैकेनिज्म पूछा है, तो मैकेनिज्म में देखो, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म तुमने बेसिक में इतना एक्सप्लेन कर दिया, पूरा पैराग्राफ भी नहीं लिखा है, कुछ स्किप भी नहीं किया, डायरेक्टली तुम एग्जांपल्स पे भी नहीं गए हो, तुमने कुछ लिखा है एंड दैट इज इनफ, मोर देन इनफ. एंड दैट इज ऑल्सो इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट इफ यू कैन सी, एंड दैट इज़ वेरी क्विक एंड ईजी टू रीड. तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे अंडरलाइन करके, सो दे कैन जस्ट स्किप फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. फिर यहाँ पे एग्जांपल है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का, उसके बारे में तुम सिर्फ 2-3 लाइन लिखो कि क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एंड देन यू कैन जस्ट ड्रॉ द साइकिल एंड फ्लो चार्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिखाया गया है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर तुमको 2 आते हैं तुम 2 लिख सकते हो, जो पूछा है उसमें तुम ज़्यादा लिखोगे तो दैट इज़ नॉट एन इशू. फिर ये नेगेटिव का है, मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग, यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या होगा. एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ये फीड फॉरवर्ड का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी तुम एक पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हो या फिर उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू हैव एंड कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है. आई थिंक ये 4 to 5 पेजेस का आंसर है, यहाँ पे 4 पेजेस हुए हैं. तुम अगर उसको मेन क्वेश्चन पेपर में लिखोगे तो ये 6 पेजेस का हो जाएगा. एंड आई थिंक 6 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर अ 10 मार्क्स क्वेश्चन.